علیکم بچوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سکسیس کوچنگ سینٹر۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پہلی نظم حمد کا لیکچر بنایا تھا، شاید آپ کو پسند آیا ہو۔ تو آج ہم نے بولے تھے پہلی غزل لے کر آئیں گے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ کافی لیٹ ہو گیا ہے ہم کو لیکچرز کنٹینیو کرنے میں، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی تمام جو ہے وہ سلیبس ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے اردو کا۔ ہم نے تو سوچا ہے کہ پورے لینگویجز کا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اردو سے ہم نے شروع کیا ہے، ہمارے 7 سبق ہو چکے ہیں، 1 نظم ہو چکی ہے، ابھی ہم غزل کی طرف آئے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلی غزل ہے جن کے شاعر ہے سراج اورنگ آبادی۔ سراج جو ان کا تخلص ہے وہ اورنگ آباد سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے بچوں کہ سراج کے زمانے کی اردو زبان پر دکنی کے اثرات ہیں، یعنی وہ دکن جب جو انسان جس کنٹری کا ہوتا ہے اس کی لینگویج میں وہاں کا اثر نظر آتا ہے، یعنی وہاں کا ٹون نظر آتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کا املا بھی آج کے املے سے مختلف تھا، جیسے مجھ، مج، کو، کوں، تک، تلک وغیرہ۔ ہمیں اپنی زبان کی قدیم صورت، اس کے تلفظ اور مزاج سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ذیل کی غزل میں اس کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی ہم جب غزل پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی جو ہے زبان، انہوں نے جو زبان میں لکھی ہے ان میں دکن کے اثرات ہم کو نظر آئیں گے۔ جان پہچان، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جان پہچان میں ہم کو جو ہے وہ اس کے شاعر کے بارے میں جو ہے وہ تمام معلومات دی جاتی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس پر بھی 2 سے 3 سوالات ہم کو دیے جاتے ہیں۔ سید سراج الدین سراج 1712 میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ مزاجن اور عملاً صوفی تھے، مگر اس کی شاعری پر تصوف کا غلبہ نظر نہیں آتا۔ وہ زندگی کو ایک عاشق کی نظر سے دیکھتے تھے۔ فارسی شعر و ادب سے انہیں بہت لگاؤ تھا۔ شاعری میں انہیں استادانہ مہارت حاصل تھی، یعنی بہت وہ ماہر تھے شاعری کرنے میں۔ ولی کے بعد وہ دکن کے سب سے نامور شاعر ہوئے۔ ولی بھی ایک شاعر ہے، ان کے بعد ان کا نام مشہور ہے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مرثیے، قصیدے، رباعیہ، خمسے اور مثنویاں بھی لکھی ہے۔ یہ تمام جو ٹائپس ہے، ان تمام جو ہے ہم قواعد جب گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہر ایک کے بارے میں ہم ڈیٹیل نالج لیں گے۔ ان کا انتقال سن 1763 میں اورنگ آباد میں ہوا۔ تو یہ تھی ان کی معلومات۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی غزل میں کیا بتایا ہوا ہے۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ جیسے کہ ہم نے ان کی پہلی نظر میں ان کی جو تعارف میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ان کی لینگویج کچھ اس طرح تھی کہ ان میں دکن کے اثرات ہم کو نظر آتے ہیں۔ اول کے مطلب ہوتا ہے پہلے، اول یعنی پہلے۔ تم نے بھول گئے مہربانیاں، یعنی تم نے تو ہماری ساری مہربانیاں سے مراد ہم نے تمہارے لیے جو بھی آسانیاں کی تھی، ہم نے تم سے جو بھی محبت کی تھی تم نے بھول گئے۔ لانے لگے ہو خوف تغافل کی بانیاں، تغافل سے مراد یہاں پر ہے، تغافل سے مراد ہے بے توجہی، تغافل سے مراد ہے بچوں لکھ لو بے توجہی جو ہے یہاں پر۔ بانیاں کس کو کہیں گے؟ بانیاں یعنی باتیں ہوتا ہے، بانی یعنی بات، بانیاں یعنی باتیں۔ تو اور ایک بار پڑھ رہے دیکھیے۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوف تغافل کی بانیاں۔ شاعر اپنے محبوب کی جو ہے بے وفائی کا شکوہ کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ تم نے جو ہے ہم کو بھلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے پہلے کی جو بھی مہربانیاں ہیں، ہم نے تم سے جو بھی اچھائیاں کی تھی، ہم نے تم سے جو بھی محبت کا سلوک کیا تھا، تم نے سب کچھ بھلا دیا ہے، اور اب بے نیازی، بے توجہی اور غفلت کی باتیں کرنے لگے۔ اور اب تم کہتے ہو کہ غفلت ہے، بانیاں ہیں، اور جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے تم بہانے بنا رہے ہو، جبکہ تمہارا یہ طریقہ اور یہ بیہیویئر جو ہے غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے، یہ بالکل اخلاق کے خلاف ہے۔ وہ اپنے محبوب سے شکوہ کر رہے ہیں۔ کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، کیا ہوئے گا یعنی کیا ہوگا اگر تم سنو گے، کان دھر کے یعنی دھیان سے اگر میری بات سنو گے تو کیا ہوگا۔ گزری براہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں، گزری براہ کی رات، براہ یعنی پتہ ہوگا بچوں جدائی،
महबूब अपनी जुदाई के बारे में कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात गौर से सुनोगे तो क्या होगा, हम किस कद्र जो है वो बेचैन रहे हैं। अगर इसकी कहानियाँ हम तुम्हें सुनाते हैं तो तुम क्या करते हो, सुनते नहीं हो बल्कि अनसुनी कर देते। तुम्हारा क्या बिगड़ता है अगर हमारी बात पर तुम कान धरो यानी ध्यान से अगर तुम सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हम पर क्या क्या बीती है। अगले शेर की तरफ चलते हैं बच्चों। दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं, दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जाफिशानियाँ, है ना। यहाँ पे जाफिशानियाँ से मुराद है तकलीफ़ें, मेरी तकलीफ़ें जो है वो मुझे परेशान कर रही है। शायर इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि वो महबूब को पाने के लिए उन्होंने जो भी तकलीफ़ें उठाई वो सब क्या है, उन्हें बेमानी लग रही है, होकर रह गई है। महबूब को अपनी जो है वो आगोश में मोहब्बत में वो लेना चाहते हैं तो उसके दामन तक भी रसाई हासिल न कर सके हैं। यानी वो महबूब के पास जाना चाहते हैं लेकिन उनके दामन यानी उनके सिर्फ वो पास भी नहीं जा पा रहे हैं और इसकी सारी जाफिशानियाँ खाक में मिलकर रह गई हैं। जाफिशानियाँ का मतलब है उनकी सारी तकलीफ़ें जो उन्होंने अपने महबूब के लिए उठाई थी वो सब जो है वो मिट्टी में मिल गई हैं, उसका अब कोई भी मतलब नहीं है, वो बहुत परेशान है। दागे फिराक लालए बागे ख़याल है, दागे फिराक लालए बागे ख़याल है, रह गए मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ, है ना। तो यहाँ पे क्या शायर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लालए बागे ख़याल, लालए बागे ख़याल से मुराद है यहाँ पर जो है तसव्वुर के बाग का फूल यानी ख़याली बाग जिसमें फूल लगे हैं। दागे फिराक का मतलब है यहाँ पे है जुदाई का गम, है ना। दागे फिराक का मतलब है जुदाई का गम और लालए बागे ख़याल है तसव्वुर करना। तो दागे फिराक लालए बागे ख़याल है यानी कि शायर अपने महबूब से कह रहा है कि तुम्हारी जुदाई के गम का दाग मेरे सीने में इस तरह नुमाया है जैसे तसव्वुर के बाग में खुले हुए लाला के दिल में दाग होता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई जुदाई का गम उनके सीने में इस तरह रस बस गया है जिस तरह के एक तसव्वुर में कोई बाग जो है वो बाग का फूल है और वो उसमें जो है वो तुम्हें देख रहा है, इस तरह जो है वो जैसे तसव्वुर के बाग में खिले हुए लाला के दिल में दाग होते हैं उसी तरह लाला के दिल के सियाह दाग की मुनासिबत से ये शेर शायर कह रहा है। रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ, जिगर में मतलब दिल में यानी कि उनके अंदर उनके हर नस नस में जो है वो उनकी निशानियाँ रह गई हैं। ऐ मेरे महबूब मेरे जिगर में भी गम फ़िरक़त के दाग तुम्हारी दी हुई निशानियों के तौर पर रह गए हैं। मेरे दिल में तुम्हारी यादों के जो है वो बातें रस बस गई हैं, ऐसा शायर कह रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा शिकायत है अपने महबूब से। ठीक है बच्चों। शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, रमज़ी तेरे निगाह की सब हमने जानिया, रमज़ी तेरे निगाह की सब हमने जानिया। यहाँ पे रमज़ी से मुराद है, रमज़ी से मुराद हम बोलेंगे रमज़ की जमा है और यहाँ पे रमज़ी से मुराद है कि इशारे करना, है ना। शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, रमज़ी तेरे निगाह के सब हमने जानिया। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब हम तेरी नज़रों से के इशारों को जो है वो अच्छी तरह जानते हैं। हम समझते हैं कि किसी के कत्ल के मशवरे हो रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि ये हमारे ही कत्ल की तजवीज़ है। ऐसा शायर को लग रहा है कि किसी की जो है वो कत्ल की बातें हो रही है, किसी के कत्ल का प्लान बनाया जा रहा है और वो उनको लग रहा है कि ये मेरे ही कत्ल का प्लान बनाया जा रहा है। जानिया का मतलब होता है जानते, है ना। और ये अपने महबूब के गम में जो है शायर कर रहे हैं। ओके। मुझ दिल के, ये मुझ यानी मुझे, मेरे, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, सुरमा किए का मतलब है बच्चों यहाँ पे
तोड़ देना, किसी के भी दिल को तोड़ देना। सुरमा करना यानी कि तोड़ देना मुहावरा है। मुझ दिल के यानी मेरे दिल के कोहे तूर को, मेरा दिल इतना बड़ा है, तुमने जो है इसको तोड़ दिया है। बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियाँ, यहाँ पर जो है बाकी है अब भी वही, बाकी है अब तलक यानी अभी भी, वही लन तरानियाँ, है ना बच्चा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अकड़ कि अल्लाह ताला जो है वो महबूब के गम में शायर कह रहे हैं कि कोहे तूर पर, उन्होंने कोहे तूर का जो यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कोहे तूर का जो ज़िक्र किया गया है, हमको पता है कि कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो भी वाक़या पेश आया था, अल्लाह ताला ने जो है वो उनको जो है कोहे तूर जल कर सुरमा हो गया था। इसकी तरफ से इशारा करते हुए शायर ने अपने दिल के लिए कोहे तूर का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे उन्होंने अपने दिल को क्या कहा है कि वो कोहे तूर है, कोहे तूर की तरह कोहे तूर है, इस्तिआरा है, इसलिए यहाँ पे के जैसा के तौर पर वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे दिल के कोहे तूर को तुमने सुरमा बना डाला, नहीं तोड़ डाला, रेज़ा रेज़ा हो गया है वो, लेकिन फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई है और तुम्हारी तजल्लियाँ और अकड़ अभी भी बाकी है। तरानियाँ यानी क्या होता है, अकड़, तुम्हारी अकड़ अभी तक बाकी है, जो है तुमने मेरे दिल को इस कदर तोड़ दिया है। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को जो है यहाँ पर बयान करने की कोशिश की गई है कि जिस तरह जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोहे तूर पर अल्लाह के नूर की तजल्लियों से कोहे तूर जल कर सुरमा हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया था और अल्लाह ताला की नूर की तजल्लियों से कोहे तूर जल कर सुरमा हो गया था, ये जो वाक़या था इसकी तरफ इशारा करते हुए शायर कह रहे हैं कि उनका दिल भी रेज़ा रेज़ा हो गया, चूरा चूरा हो गया, लेकिन अभी उनके महबूब की अकड़ अभी भी बाकी है। कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, कब लग का मतलब है यहाँ पर कब तक यानी रखोगे तगाफुल सिराज पर, तगाफुल यानी बेतवज्जी ही जो है इग्नोरेंस बोलेंगे, कब तक तुम अपने जो है वो सिराज को क्या करोगे, इग्नोर करेगा। अब इस कद्र भी खूब नहीं सरगरानियाँ, यानी सरगरानियाँ का मतलब वही है बच्चों यहाँ पे अकड़, यानी इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं है, तुम अपने सिराज से कब तक रूठोगे, कब तक इग्नोर करके रहोगे। जो है इस तरह जो है शायर क्या कह रहे हैं कि उस शायर अब उसके रवैये से बिल्कुल भी क्या है एकदम बेजार हो चुके, तंग आ चुके हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि सख्त लहजे में अपने महबूब से कह रहे हैं कि इस कदर बेनियाजी और जो है बेतवज्जुही क्यों रख रहे हो, इस कदर अकड़ और सरगानी यानी कि अकड़ और बेतवज्जुही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह जो है वो अपने जो है वो महबूब से शिकायत कर रहे हैं। तो बच्चों ये थी हमारी गज़ल। अब जो है हमको जो है यहाँ पर मायने दिए हुए हैं और इसके कुछ सवालात भी दिए हुए हैं, जो अगर आप चाहते हैं अगर बोलेंगे तो हम उसको कवर करेंगे, बट जो है वो इस लेक्चर में तो नहीं, ये लेक्चर इतना ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपके कमेंट रहे तो हम क्वेश्चन आंसर को भी आपके लिए करके देंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर जो है वो इन शॉर्ट ये बताया हुआ है कि शायर अपने महबूब से नाराज़ है क्योंकि वो महबूब उनसे जो है वो अकड़ रहा है, उस पर बेतवज्जही बरत रहा है, वो अपने महबूब को पाना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारा लेक्चर पसंद आया, गज़ल समझ आई है, तो अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो है बच्चों जिस तरह जो है ये गज़ल 1 अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं, इसी तरह नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह गज़ल 2 भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और जो नज़्म, गज़ल और क़तात ये ऐसे जो है हमारे सिलेबस के हिस्से हैं। सबक तो बहुत आसान होते हैं, बाकी की चीज़ें जो है हमको समझ कर करना है, क्योंकि इसमें जुमले नहीं होते, हमको जवाबात में जुमले बनाकर लिखने होते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा तवज्जो देकर हमको क्वेश्चन आंसर इसके करने हैं, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए गज़ल या सबक लेकर आएंगे। जब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।